Hello guys, today we are going to represent our very first topic of 9th class, number system. In 6th class, 7th class, 8th class, we have already done about numbers. Let us recall about that. First, natural numbers, है ना? What are natural numbers? Counting numbers, 1 onwards. All numbers are natural numbers. It is represented by very first letter, capital N. So we actually write capital N is 1, 2, 3 onwards. Second, whole numbers. अब whole numbers क्या है? 0 onwards, है ना? 0, 1, 2, 3 onwards. तो it is represented by W. 0, 1, 2, 3 onwards. One more important thing in this we have. Check out this. ये क्या है? Natural numbers. तो इसका मतलब every natural number is a whole number. Every natural number is whole number. Third, guys, we have integers. All negative, 0, positive are integers and represented by I or Z. Yes, Z. Z word come from Zehlin, a word, German word जिसका मतलब क्या है? Counting. तो Z also there. तो I और Z is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. अब चेक करते हैं. Here we have natural numbers. तो इसका मतलब every natural number is an integer, है ना? Second case, these are whole numbers. Every whole number is an integer. Am I right? After that, we have one term regarding integers. What is that? Non-negative and non-positive. जो आपको further classes में काम आएंगी. One is non-negative, one is non-positive. One is positive, one is negative. ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 1, 2, 3 onwards. मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर्स. अब नेगेटिव -1, -2, -3 onwards. नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज नेगेटिव इंटीजर्स. अब नॉन नेगेटिव क्या हुआ? 0, 1, 2, 3 onwards. So what is the difference between non-negative and positive of this 0? Same. Non-positive integers 0, -1, -2, -3 onwards. Again, difference between these two is 0 because 0 is called non-negative और non-positive term. इसका मतलब 0 पर प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल. व्हेन वी आर राइटिंग 4 - 4, व्हाट यू राइट गाइस? +0 और -0. क्या लिखते हैं हम? कुछ भी नहीं लिखते, हम सिर्फ 0 लिखते हैं बिकॉज इक्वालिटी लेवल आ गया जहां पे प्लस और माइनस नो वैल्यू. तो दैट इज देयर. दीज आर नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. Positive are written as I plus or Z plus. Negative are I negative or Z negative. Now we are moving to our next, rational numbers. Which numbers are rational numbers? Number in the form of P by Q, where Q is non-zero, P and Q are
इंटीजर आर कॉल्ड रैशनल। आप 8th क्लास में इसको स्टडी कर चुके हो। एग्जाम्पल्स आर -2/3, 5/8, 12/7। -3 इज ऑल्सो रैशनल। क्यों? क्योंकि -3 को हम p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दिस सेम 0 is also rational. We can write 0/1. But 1/0 is not rational. What is the reason behind this? क्योंकि यहां पे हमने क्या लिखा है? Q is not equal to 0. और Q यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिनोमिनेटर को। लेकिन यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया? 0 आ गया। बट इट शुड नॉट बी देयर, सो इट इज नॉट देयर। अब ऑल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं 1 to 3 ऑनवर्ड्स, सभी नेचुरल नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक, सेम 0 also we can write every whole number is a rational number. Integers also we can write every integer is a rational number. This we have done up to 8th class. To making it more clarify, I am drawing one example, one diagram. 1, 2, 3, 4 onwards. These are natural numbers, है ना? 0 साथ में आ गया. We have whole numbers. -1, -2, -3 onwards आ गया. We have integers. Am I right? अब जो फ्रैक्शंस आ गए -2/3, 12/5, -8/9, 7/12, वॉट एवर इज देयर, ऑल दैट आर रैशनल। और जो रैशनल है उसकी रिप्रेजेंटेशन है Q। Q वर्ड ड्राइव फ्रॉम कोशेंट, जो डिवाइड के वक्त आता है, कोशेंट। तो ये हो गया, है ना, Q। तो व्हाट इज देयर गाइस? फ्रॉम इनर टू आउटर वी आर मूविंग, फ्रॉम इनर टू आउटर। तो देखो डायग्राम से का पर्पस क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, अंदर से बाहर। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज रैशनल। एवरी इंटीजर इज रैशनल। अंदर से बाहर की तरफ ट्रू है तो क्लियर, अगर उल्टा फ्रॉम आउटर टू इनर वी विल मूव तो दैट इज फॉल्स। तो दिस इज अ सिंपल लेआउट और डायग्राम, सो दैट नो नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम you can learn very easily the concept of the number system what we have discussed in up to 8th class. Now we are moving to some more types. Now guys, we have very first decimal format जिसकी हमने बात करनी है, decimal representation. What is that? हमारे पास 2 types of decimal हैं, terminating, non-terminating. Terminating 1.5, 2.86, 12.4 decimal complete हो गया. Non-terminating 1.333. There are so many, we will discuss in our next part. तो इन नॉन टर्मिनेटिंग वी हैव फर्दर 2 टाइप्स, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग. व्हाट इज रिकरिंग? रिपीटिंग इन सिस्टमाइज्ड, बेसिकली
एंड नॉन रिकरिंग नॉट रिपीटिंग इन सिस्टम, जब दिल किया रिपीट कर रही है। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स, बट टोटल वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल। वन इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, थर्ड इज नॉन रिकरिंग। तो व्हाट आर देयर? अब मैं रैशनल नंबर पे वापस आ रहा हूं। जो हमने डेफिनेशन की थी वो सिंपल नंबर में की थी। अब डेसिमल में इसकी दो डेफिनेशंस हैं। वन इज दैट, अब सिंपल डेफिनेशन, अब डेसिमल फॉर्मेट में क्या है? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, ये दोनों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग recurring, that is rational number, that are rational number. Why? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसको भी हम p by q फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसको भी हम p by q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको नहीं लिख सकते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। तो रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन क्या हो गई, ये विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, q इज नॉन जीरो, p एंड q आर इंटीजर। और सेकंड हो गई ये डेसिमल फॉर्मेट में, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, दैट आर ऑल्सो रैशनल। व्हाई? बिकॉज वी कैन कन्वर्ट them in the form of p by q, that we will discuss in our next video. Here we are discussing about just definitions, what are numbers. After that we move to now very next or new for you, irrational numbers. Now what are irrational? Name is telling ir, which are not rational, which are not rationals. तो इसका मतलब which cannot be represented in form of p by q, where pq are integers and q is non-zero, which cannot be represent in this form. अब कौन से नंबर हैं? सबसे बड़ी बात, कौन से नंबर आ गए? √2, that is irrational. √5, क्यूब रूट 7, हमने 8th क्लास में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात की हुई है ना? तो वहां पे हमने क्वेश्चन किए थे विच नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है अनरूट्स, उनके जो स्क्वायर रूट्स हैं दैट वन। लेकिन अगर √4 आ गया दोस्तों, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। ये सॉल्व हो रहे हैं, है ना? जो सॉल्व हो रहे हैं वो कौन से हैं? रैशनल्स, क्योंकि ये सॉल्व हो रहे हैं। और जो सॉल्व नहीं हो रहे दैट आर इररेशनल। तो ऑल दीज आर इररेशनल, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जो अनरूट फॉर्मेट में ही है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, क्यूब रूट 3, ऑल दीज आर, हाँ, जो सॉल्व हो रहे हैं दैट आर रैशनल। वन इज दिस। सेकेंड डेफिनेशन, अब डेसिमल में मैं बैक चल रहा हूं। डेसिमल्स में हमने क्या किया था? टू फॉर्मेट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? अगेन इन दैट रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये दोनों क्या थे? रैशनल। और ये क्या है फिर? इररेशनल। द नंबर्स in the form of non-terminating, non-recurring are called irrational numbers. अब दोस्तों क्वेश्चन, ये नंबर कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आपके माइंड में चल रही है, ठीक है हम पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, अब ये क्या होते हैं? आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, 10/3, इसको डिवाइड करो आप,
तो व्हाट यू विल गेट 3.33333, मतलब रिमाइंडर सेम वही 111 आता जाएगा। तो ये रिपीट हो रहा है, ये होते हैं रिकरिंग। नॉन रिकरिंग कैसे? 3.31, 311, 311, 3 4 times 1 up to so on, या 4.1415689321843456 जो भी है। डिफरेंस क्या है? मैंने क्या बोला था? रिकरिंग, सिस्टमाइज्ड रिपीटिंग। यहां पे 3 साथ ही साथ आ रहे हैं, 3 के बाद 3, फिर 3 के बाद 3, फिर 3 के बाद 3, या 1.24242424। मतलब क्या हुआ? यहां पे 24 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, बैक टू बैक आ रहा है, सिस्टमाइज्ड आ रहा है। और 43.56767667। अब यहां पे देखो 6767, ये साथ ही साथ रिपीट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग फॉर्म, रिपीटिंग फॉर्म इन सिस्टमाइज्ड। बट यहां पे क्या है? देखो 31 31, फिर गैप आ गया एक डिजिट का, 31 फिर गैप आ गया, 31 फिर गैप आ गया। अब यहां पे क्या था? साथ ही साथ ये रिपीट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग और दिस इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग। अब यहां पे तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई डिजिट आ रहा है, कभी कोई डिजिट आ रहा है। तो ऑल दीज आर देयर विच आर रिपीटिंग कंटिन्यूसली बैक टू बैक, जिसको हम बोलते हैं दैट आर रिकरिंग, विच आर नॉट रिपीटिंग दैट आर नॉन रिकरिंग। अब ये दोनों P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम नहीं लिख सकते, तो दैट इज इररेशनल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट पाई, you have listened, you have done so many questions about pi. Now what is pi? Pi, है ना? What is the value of pi? You have done so many questions. 22/7, है ना? Or sometime we use 3.14. Am I right? So this is rational or irrational? The main question is pi is rational or irrational? The question is, आपके माइंड में क्या चलेगा? ये होगा P by Q फॉर्मेट, तो रैशनल है। ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो रैशनल है। तो पाई भी क्या है? रैशनल, है ना? यही चलेगा। लेट अस सी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ पाई। एक्चुअली पाई है क्या? सबसे पहली बात, पाई इज रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। ये पाई की डेफिनेशन है। पाई इज रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल। यहां से पाई की वैल्यू ड्राइव हुई है। तो कैसे हुई? मैथमेटिशियंस ने क्या किया दोस्तों इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए? क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हैं, बहुत। आप क्लॉक चेक कर सकते हो अपने रूम में, आपके पास पेन है वो राउंड शेप में है, ग्लास है आपके साथ वो राउंड शेप में है, डिओड्रेंट इज देयर इन राउंड शेप, मैनी डिओड्रेंट्स आर देयर। तो जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पे प्रॉब्लम क्या आई जब मैथमेटिशियन इस पर वर्क करना स्टार्ट किया? इसके सर्कमफ्रेंस पे, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ बटन्स, शर्ट बटन्स। एक ही साइज के शर्ट बटन्स लिए और यहां पे लगाना स्टार्ट कर दिया, है ना? सेम उन्होंने क्या किया? डायमीटर पे लगाना स्टार्ट कर दिया, डायमीटर पे। ठीक, तो ऑब्वियसली अब बटन का साइज भी मैटर करेगा। सपोज जो शर्ट मैंने डाली हुई है उसका बटन का साइज और हो सकता है, जो आपने डाल लिया उसका शर्ट का बटन का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है, इट माइट बी दिस, इट माइट बी दिस, इट माइट बी दिस, है ना? तो ऑब्वियसली वेरिएशन बहुत आएगी। तो व्हाट दे ट्राइड, जितने बटन सर्कमफ्रेंस पे थे और जितने बटन डायमीटर्स पे थे,
नंबर ऑफ बटन्स, ठीक है। उनकी रेशो निकालनी स्टार्ट की उन्होंने, है ना। और दे हैव कैलकुलेटेड अप टू ट्रिलियन, शायद इससे भी ज्यादा हो गया होगा अब, डेसिमल डिजिट्स। मैं ट्रिलियन, यहां पे हमने 1/4 लिखा है तो दीज आर 2 डिजिट्स, और मैं ट्रिलियन डेसिमल डिजिट्स की बात कर रहा हूं। यस, ट्रिलियन, यू कैन थिंक नाउ। तो मैथमेटिशियन हैड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई with these types of activities or calculation up to trillion decimal digits, and what they found that the decimal format is non-terminating and non-recurring form. उन्होंने up to trillion decimal digit, जो मैंने जस्ट इससे पहले बात की थी, जो इर्रेशनल की हमने बात की थी, क्या बात की थी, दैट डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो व्हाट दे फाउंड अप टू, मैंने सिर्फ 4 डिजिट लिखे हैं डेसिमल के, अप टू ट्रिलियन डेसिमल डिजिट, एंड दे फाउंड दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो पाई इज इर्रेशनल। ये होगा पहला फेज। बट अब क्वेश्चन माइंड में क्या आ रहा है आपके कि सर ठीक है, पाई तो इर्रेशनल है, और इस तरफ क्या आ रहे हैं, रैशनल और इर्रेशनल, विच इज नॉट रैशनल, है ना। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स इतने हैं, उनको सॉल्व करना है, मेजर करना है, तो वी नीड पाई, वी नीड दैट कांस्टेंट वैल्यू, जो इन्होंने एक सिंबल दिया था, हमें पाई चाहिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने क्या किया, इसके पहले 2 डिजिट्स को फिक्स कर लिया, 3.14, कि दीज आर अबाउट टू क्लोज द वैल्यू ऑफ पाई टू सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ और आवर सिनेरियो। तो व्हाट इज देयर नाउ, अगर आप चेक करोगे 22/7, तो इसके फर्स्ट 2 डिजिट ये आएंगे। एक वैल्यू आप 10th क्लास में यूज करोगे, जिसको मोस्ट क्लोज माना जाता है दोस्तों, ये इसको पाई के मोस्ट क्लोज माना जाता है, इसके फर्स्ट 4 डिजिट सेम होते हैं, तो इसकी भी 3.14 है। तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, एक ये वैल्यू को फिक्स मान लिया कि पाई की ये वैल्यू से हम जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज 2 आर अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है। These 2 are basically the approximate values of pi, not exact value of pi. ये दोनों रैशनल है, I agree on you, but these are approximate values, not exact value. Exact value इसकी है ही नहीं, because this is non-terminating, non-recurring. So this is a concept, guys, that pi is तो ये हो गया हमारा irrational का concept. And the last phase of this lecture is रियल नंबर्स। लास्ट, रिप्रेजेंटेड बाय आर। इर्रेशनल की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है दोस्तों, इर्रेशनल की कोई, जैसे रैशनल की क्यू थी, इर्रेशनल की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रियल, टोटैलिटी ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मतलब जो नंबर्स हमने स्टडी किए हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। अब मैं डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूं दोस्तों। यहां पे नेचुरल नंबर क्या थे, 1 2 3 ऑनवर्ड्स, है ना। 0 आ गया, ये बन गए होल। नेगेटिव वैल्यूज आ गई, ये बन गए इंटीजर्स, है ना। फ्रैक्शंस वैल्यूज आ गई, या टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, या रिकरिंग आ गया, ऑल दैट फॉर्म, ये बन गए रैशनल, है ना। रेक्टेंगल बना दी मैंने एक, और ये बन गए रियल, ठीक है। अब इर्रेशनल कहां गए, ये बच गए जो।
√2, √3, pi, 1.2323325, ऑल दीज आर, जो ये स्पेस बच गई सारी, ये आगे इरेशनल। क्यों? व्हाट आर इरेशनल विच आर नॉट रैशनल? अब रैशनल तो ये ब्लू लाइन के अंडर आ गए, तो जो ब्लू लाइन के बाहर हैं और रियल के अंडर हैं वो क्या बच गए? इरेशनल बच गए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं नीचे से ऊपर की तरफ। एवरी नेचुरल इज होल, एवरी नेचुरल इज इंटीजर, एवरी नेचुरल इज रैशनल, एवरी नेचुरल इज रियल। एवरी होल इज इंटीजर, एवरी होल इज रैशनल, एवरी होल इज रियल। एवरी इंटीजर इज रैशनल, एवरी इंटीजर इज रियल। एवरी रैशनल इज रियल, एवरी इररेशनल इज रियल। अब इररेशनल ये बाहर की तरफ है, इसलिए इनके साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स। थैंक यू।